All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that what we have completed within last lecture. Within last lecture, we have started with the topic that which are the issues we need to consider if we want to construct the highway. There were 7 issues, right? And after that, we have also seen public policy and global connectivity, within which we have considered 4 different points, that is access to local infrastructure, then it is global subsidies, cost and pricing for universal access, and adoption of technology standard. By completing this topic, we have completed unit 2 of our syllabus. After that, we have started with unit 3, and from unit 3, first of all, okay, more precise, unit 3 is electronic payment system, right? And within that, first of all, we have started with the security part, which is 3.2, right? And within 3.2, the topic was security on web, within which we have to consider that which kind of security we have to provide if we want to implement electronic payment system. And after that, we have also seen that there are 3 different properties which we need to consider related to data exchange, right? That is server authentication, then it is another was data integrity, and third was it is privacy using encryption. So these were the properties which we need to consider if we want to exchange data over the internet or with e-commerce applications. Then we have seen categories of internet data and transaction, within which we have divided internet data and transaction into 4 different categories, that is public data, copyrighted data, confidential data, and secret data. And by the end, we have seen that WWW based security schemes, means which are the security schemes that are defined within WWW. They were secure HTTP, secure socket layer, and CHEN, right? These were the 3 security schemes. And from these 3 security schemes, SSL, that is secure socket layer, that is within your syllabus, right? So students, today we will start with the topic that is SSL, that is secured socket layer. Now, what is the scenario? As we have already discussed, that if we want to transmit the data over the internet, फिर वो कोई भी टाइप के डेटा हो, हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा हो या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जो हम चाहते हैं कि कोई किसी और को पता ना चले, देन ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा. और अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, देन ऑब्वियसली कोई हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा या फिर कोई भी हमारी एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा अगर उन्हें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो. सो फॉर दैट पर्पस नेटस्केप कॉर्पोरेशन, राइट, इट इज द कंपनी, उन्होंने एक प्रोटोकॉल प्रपोज किया है. ये प्रोटोकॉल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी लेयर. कौन से प्रोटोकॉल्स के बीच में ये डेटा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करते हैं? बिटवीन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स एंड TCP/IP. अगेन आई रिपीट, जो हमारा OSI मॉडल है, OSI लेयर्ड मॉडल है कि जो हम नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स थे एंड TCP/IP प्रोटोकॉल था, वो दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दिया गया है, दैट इज डेटा सिक्योरिटी लेयर. और ये लेयर किसने ऐड किया है? नेटस्केप कम्युनिकेशन. इट इज अ कंपनी के जिसने ये डेटा सिक्योरिटी लेयर इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल प्रपोज किया है, राइट? ताकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके. कोई भी डेटा को ट्रांसमिट करना है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, डेटा को प्राइवेट रखना है, वी नीड टू प्रोवाइड प्राइवेसी फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट? तो वहां पे हम ये डेटा सिक्योरिटी लेयर का यूज कर सकते हैं. एंड दिस डेटा सिक्योरिटी लेयर इज proposed by Netscape Communication Company. This security protocol is called secure socket layer. As we have already discussed कि जो data security का जो protocol है, it is in terms of data security layer. That's why the name of this particular protocol is, that is the name of this security protocol is secure socket layer. वो क्या provide करेगा? It will provide data encryption,
server authentication, message integrity, client authentication. Means we can say it will provide the 3 properties which we have already discussed if we want to exchange data over the internet. राइट अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज के जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इफ वी वांट टू एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट. दैट वाज सर्वर ऑथेंटिकेशन, encryption and integrity. So all those 3 properties are provided by this secure socket layer. So those 3 basic properties which were data encryption, server authentication and message integrity, it is provided by this security protocol, that is secure socket layer. And along with that, it also provides client authentication for TCP/IP connection. अगेन आई रिपीट, वो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन अलोंग विद दैट इट आल्सो प्रोवाइड्स क्लाइंट ऑथेंटिकेशन. हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि सर्वर ऑथेंटिकेशन वहां पे होना चाहिए, लेकिन ये सिक्योर सॉकेट लेयर इट इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की जो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करेगा. Right? That's why this layer is placed between application protocols and TCP/IP protocol. Right? Now, as I have already discussed कि ये जो SSL layer है वो कहाँ पे रखा गया है, beneath application protocol. मतलब जो भी application protocol है उसके बाद उसे रखा गया है, that is SSL layer. अब ये application protocols कौन कौन से है, that is HTTP है, SMTP है, Telnet है, HTTP है, sorry FTP है, गोफर है, NNTP है, राइट? ये जो सारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है उसके नीचे ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है वो रखा गया है, एंड इट इज अबव TCP/IP प्रोटोकॉल. मतलब ये TCP/IP प्रोटोकॉल यहाँ पे आएगा, राइट? दैट इज TCP/IP प्रोटोकॉल आएगा. वी कैन से कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नीचे है ये SSL लेयर और TCP/IP लेयर के ऊपर है, right? So that's why it is beneath the application protocol and above TCP/IP protocol के जिसका यूज करके हम इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, right? Now what does this SSL provide? SSL provides security handshake. What is handshake? आपने ऑलरेडी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि अगर मुझे कोई भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो ऑब्वियसली मैं वहां पे TCP/IP कनेक्शन करूंगी. TCP/IP कनेक्शन करूंगी तो वहां से क्या आएगा, पहले जो क्लाइंट मशीन है वो सर्वर के ऊपर कनेक्शन करने के लिए मैसेज भेजेगा, राइट? सर्वर क्या करेगा, उसे ऑब्वियसली एक्नॉलेज करेगा. एक्नॉलेज करने के बाद ये फिर से क्लाइंट एक मैसेज भेजेगा कि ओके मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया है. दिस इज नोन एज हैंडशेक. अगेन आई रिपीट, दिस इज नोन एज हैंडशेक. सो ये SSL लेयर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी हैंडशेक ताकि हम TCP/IP कनेक्शन को इनिशिएट कर सके. अब ये जो हैंडशेक है उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्लाइंट एंड सर्वर ऑब्वियसली दोनों अग्री करेंगे कि जो भी लेवल ऑफ सिक्योरिटी वहां पे डिफाइन की है उसके ऊपर क्लाइंट और सर्वर दोनों अग्री करेंगे. एंड ऑब्वियसली जो भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है फॉर द कनेक्शन वो भी वहां पे फुलफिल हो जाती है, राइट? अगेन आई रिपीट, ये हैंडशेक का मीनिंग क्या होता है, ये हैंडशेक का मीनिंग ये होता है कि जो भी लेवल ऑफ सिक्योरिटी पहले से वहां पे डिफाइन की है वो सिक्योरिटी लेवल पे के ऊपर क्लाइंट और सर्वर दोनों अग्री करते हैं, एंड अलोंग विद दैट दे आर आल्सो रेडी फॉर द ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स, राइट? कि जो भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो भी वहां पे फुलफिल हो जाएगी और उसके ऊपर वो अग्री करते हैं और उसके बाद ही वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकेंगे. क्लियर, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज हैंडशेक. हमने ये तो देखा कि क्लाइंट के सर्वर, क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, सर्वर से क्लाइंट के ऊपर एंड अगेन क्लाइंट से सर्वर के ऊपर कोई मैसेज जाता है एंड दैट इज नोन एज हैंडशेक. लेकिन ये हैंडशेक का मीनिंग क्या होता है, क्यों करते हैं ये हैंडशेक? सो to decide the authentication requirement and to agree with level of security, राइट? दोनों को वहां पे अग्री करना पड़ेगा कि ओके हम ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर हम कनेक्शन करना चाहते हैं. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस हैंडशेक.
ओके, नाउ एज आई हैव टोल्ड, आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि हमारा ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर है वो कहाँ पे है, राइट? इट इज एप्लीकेशन, जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो हमने डिस्कस किया था उसके नीचे है, और ये जो आईपी प्रोटोकॉल है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके ऊपर है, राइट? सो दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर, राइट? एंड दिस एसएसएल लेयर, उसका रोल क्या होगा? इट विल एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज स्ट्रीम। मतलब जो भी हम मैसेज इंटरनेट के ऊपर पास ऑन करेंगे उसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम कौन करेगा? ये एसएसएल लेयर करेगा। So this is the role of this SSL layer. More precise, we can say this is the role of this SSL protocol or more precise security protocol. कि उसे क्या करना है कि जो भी मैसेज जाते हैं, जो भी मैसेज आते हैं, उन्हें उसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है, राइट? एंड इतना आपको याद रखना है कि ये SSL लेयर कहाँ पे है? इट इज बिलो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एंड अबव इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप ये लेयर्स को पढ़ोगे, राइट, तो उसके अंदर ये SSL लेयर कहाँ पे है वो आपको याद रखना है, राइट? ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये SSL प्रोटोकॉल क्या करेगा, या फिर मोर प्रिसाइज ये SSL लेयर क्या करेगा? इट विल एनक्रिप्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो दोनों को वो एनक्रिप्ट करेगा। अगेन आई रिपीट, जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो दोनों को एनक्रिप्ट करेगा। उसके साथ साथ वो यूआरएल को भी एनक्रिप्ट करेगा कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद अगर हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म के कंटेंट है जो बहुत ही क्रूशियल कंटेंट है, उन्हें भी वो एनक्रिप्ट करेगा। एंड एनी HTTP एक्सेस ऑथोराइजेशन इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के जो बहुत ही क्रूशियल है, उसे भी वो एनक्रिप्ट करेगा। और वो सारे डेटा कि जो सर्वर से रिटर्न होते हैं क्लाइंट तक, उन्हें भी वो एनक्रिप्ट करेगा। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा है कि वो जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड अलोंग विद दैट हम जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, वो दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट हो जाएगी। और ये दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें आती है? यूआरएल आता है, हम जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो आता है, कोई भी ऑथोराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी आता है, एंड अनदर थिंग, जो भी सर्वर क्लाइंट के ऊपर डेटा सेंड करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कवर हो जाती है। मीन्स अगर हम ऐसा इन शॉर्ट में कह दे कि HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो एनक्रिप्ट करता है, राइट? ओके, सो व्हाट इज द थिंग? ये क्या करेगा? ये एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करेगा, राइट? कि इसका यूज करके हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी हमारे मैसेज को टेम्पर नहीं कर सकता। Again, I repeat, SSL क्या प्रोवाइड करेगा? SSL will provide encryption. वो encryption क्या क्रिएट करेगा? It will create a secure channel. एक ऐसी secure channel वो क्रिएट करेगा ताकि कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी नेटवर्क के ऊपर, वो हमारी इंफॉर्मेशन को टेम्पर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिवेंट वर्ड यूज किया है, राइट? अलोंग विद दैट, जो भी क्लाइंट और सर्वर है, राइट, वो दोनों के बीच में जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर भी वो ध्यान रखेगा कि वो टेम्पर ना हो। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन वो किस हिसाब से प्रोवाइड करेगा? बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, right? So in short we can say that SSL will provide encryption कि जो सिक्योर चैनल क्रिएट करेगा। ये सिक्योर चैनल का मीनिंग क्या होता है? सिक्योर चैनल का मीनिंग ये होता है कि नेटवर्क के ऊपर कोई भी XYZ पर्सन, राइट? XYZ पर्सन मैंने इसीलिए कहा बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी वर्ड यूज हुआ है। कोई भी XYZ पर्सन हमारे डेटा को टेम्पर नहीं कर सकता, रीड नहीं कर सकता। जो भी मैसेजेस क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, उन्हें वो रीड नहीं कर सकता।
एंड वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है किसका यूज करके, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय SSL। अगर हम शॉर्ट में कहे तो वो एक सिक्योर चैनल हमें बना के देता है, राइट। और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, एनक्रिप्शन होता है, राइट। जो भी मैसेजेस हम सेंड और रिसीव करते हैं वो सारे मैसेजेस टेम्पर नहीं हो सकते, उसका ध्यान रखता है। और वो ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, राइट। नाउ अनदर थिंग इज दैट अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। सो इट विल इम्प्लीमेंटेड ऑन द सर्वर। Server will implement server-side support for HTTP over SSL. Again, I repeat, server will implement server-side support for HTTP over SSL. इसका मीनिंग क्या होता है, it will include the support for acquiring server certificate and communicating securely with SSL enabled browsers. राइट, अगेन आई रिपीट, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये कहां पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सर्वर विल इम्प्लीमेंट सर्वर साइड सपोर्ट ओवर HTTP फॉर HTTP ओवर SSL, राइट। वो कौन सी चीजें इंक्लूड करेगा, एक्वायरिंग सर्वर सर्टिफिकेट एंड कम्युनिकेटिंग सिक्योरली। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान में रखना है, SSL enabled browsers. Again I repeat, SSL enabled browsers. SSL enabled browsers का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे ब्राउजर्स के जो ये SSL लेयर को सपोर्ट करता है, और SSL लेयर को सपोर्ट करने के लिए सर्वर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही वो सिक्योरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। That's why we can say that server will implement server sided support. किसके लिए, HTTP प्रोटोकॉल का तो ये हम यूज करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे SSL लेयर का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड वो कौन सा क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि हम सर्वर के पास से सर्टिफिकेट ले सके और हम सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके, लेकिन किसका यूज करके, SSL एनेबल्ड ब्राउजर का यूज करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। मीन्स हम जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो SSL लेयर को सपोर्ट करता होना चाहिए, राइट। नाउ टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, ये जो नेटस्केप नेविगेटर कंपनी है, इट हैज सपोर्टेड न्यू URL एक्सेस मेथड। Again I repeat, it has supported new URL access method. अभी तक हमने देखा था कि ओके हमारा URL जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है HTTP, राइट, ://। लेकिन अगर मुझे HTTP सर्वर को एक्सेस करना है, HTTP सर्वर के साथ कनेक्शन करना है यूजिंग SSL, तो मुझे HTTP प्रोटोकॉल नहीं यूज करना है, मुझे यूज करना है HTTPS protocol. It is HTTP over SSL, right? It is HTTP over SSL. In short, नेटस्केप नेविगेटर कंपनी ने एक नया ही प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कि हमें दे दिया, कि जिसका यूज करके हम ये न्यू URL एक्सेस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। और वो URL मेथड कौन सी है, कि हमें अगर HTTP सर्वर के साथ कनेक्शन करना है, राइट, लेकिन सिक्योर्ड कनेक्शन करना है, तो वहां पे हमें HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करना है इंस्टेड ऑफ ओनली HTTP, तो ही हम वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो इट इज रिटन ओवर हियर कि अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, राइट, अगर मुझे HTTP URL विथ SSL लेयर का यूज करना है, तो मुझे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। और सिंपल ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन है कि जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मींस HTTP URL विदाउट SSL लेयर, राइट, तो वहां पे मैं सिर्फ सिंपल HTTP का यूज कर सकती हूँ, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये बाइफरगेट कैसे होगा, डिफरेंशिएट कैसे होगा। As I have already told, कि HTTP plus SSL is HTTPS, and simple HTTP are the two different protocols. That's why वो दोनों प्रोटोकॉल डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे।
Again, I repeat, HTTP plus SSL is HTTPS and HTTP are two different protocols. और obviously अगर वो दोनों different protocols है तो वो दोनों different ports के ऊपर work करेंगे, right? हमें HTTP का तो पता ही है कि वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करता है, लेकिन ये जो HTTPS प्रोटोकॉल है वो 443 पोर्ट नंबर के ऊपर वर्क करेगा। मीन्स वी कैन से कि सेम सर्वर सिस्टम के ऊपर वो दोनों टाइप के प्रोटोकॉल साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, दैट इज सिक्योर्ड प्रोटोकॉल एज वेल एज इनसिक्योर HTTP, दोनों साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस कि ये वो डिसाइड खुद कर लेता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वो इंफॉर्मेशन के को सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उसे सिक्योरिटी चाहिए तो वो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करके हम वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक पोर्ट नंबर 443 के ऊपर वर्क करेगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन के जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो वहां पे हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वर्क करेगा, राइट? मतलब दोनों चीज साइमल्टेनियसली वहां पे वर्क कर सकती है, राइट? बिकॉज हमें पता है कि सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे मीन्स व्हाट वी आर डूइंग स्टूडेंट्स ओवर हियर, SSL लेयर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? इट इज एनक्रिप्टिंग द डेटा एंड डिक्रिप्टिंग द डेटा, राइट? उसी का यूज करके, वही टेक्निक्स का यूज करके वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ द थिंग इज दैट अगर ऐसी इंफॉर्मेशन की जिसको सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है फिर भी हम वहां पे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करके उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे तो जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे वो उसे एनक्रिप्ट करेगा, सर्वर के पास जाएगा, उसे डिक्रिप्ट करेगा, सर्वर उसका रिस्पॉन्स देगा तो फिर से एनक्रिप्ट करेगा, फिर हमारे पास आएगा, हम उसे डिक्रिप्ट करेंगे। मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन की जिसको सिक्योरिटी की ही जरूरत नहीं है वहां पे भी परफॉर्मेंस हमें अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये SSL लेयर दोनों तरफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हर बार करता रहेगा। दैट्स वाई ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर बाइफर्केशन हुआ है। हम ऐसा सोच लेते कि ओके ये दो प्रोटोकॉल की जरूरत क्या है, HTTPS प्रोटोकॉल ही रख लो, इजीली प्रोटोकॉल, एक ही प्रोटोकॉल का यूज करके हम सारी चीजें कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी यूजर है वो पर्टिकुलर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसे ऐसा लगेगा कि जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बहुत ही स्लो मैनर में है। दैट्स वाई हम यहाँ पे टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। मीन्स अगर हमें हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी चाहिए, राइट, तो वहां पे हम HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, और ऐसी इंफॉर्मेशन कि जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो वहां पे हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो भी मर्चेंट का कैटलॉग है, कैटलॉग का मीनिंग ये है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन है, राइट, तो ऑब्वियसली इट इज इनसिक्योर, उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो हम वहां पे यूज कर देंगे HTTP प्रोटोकॉल। लेकिन अगर कोई पेमेंट करता है स्टूडेंट्स तो वहां पे ऑब्वियसली हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम वहां पे प्रोटोकॉल यूज करेंगे दैट इज HTTPS, राइट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे बाइफर्केशन होता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन दोनों टाइप की होती है, जिसको सिक्योरिटी चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है, और सिक्योरिटी नहीं चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन भी होती है, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करना है दैट इज HTTP प्लस SSL, तो वहां पे SSL एनेबल ब्राउजर हमें यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, जैसे मैंने आपको बताया कि HTTP प्लस SSL, राइट, वो अगर हमें वो प्रोटोकॉल का यूज करना है तो वहां पे हमें SSL एनेबल ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा। बट
ऐसे ब्राउजर्स कि जो ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, they will not able to access the URL with HTTPS. Again I repeat, ऐसे ब्राउजर्स के जो ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर HTTP plus SSL, वैसे ब्राउजर्स ऐसे URL को एक्सेस नहीं कर पाएंगे कि जिसके अंदर HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया गया है, राइट? सो अगेन, अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो वहां पे हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा ब्राउजर SSL एनेबल होना चाहिए, राइट? नाउ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिफरेंट URL एक्सेस मेथड, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि ये डिफरेंट URL एक्सेस मेथड का बेनिफिट क्या है। अगर सिर्फ हम HTTPS प्रोटोकॉल का ही यूज करते तो नॉन SSL ब्राउजर्स तो कोई हमें हेल्प ही नहीं कर पाते। अगेन आई रिपीट, अगर हम सिर्फ HTTPS प्रोटोकॉल का ही यूज करते सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए, सारे URL क्रिएट करने के लिए, राइट, तो जो नॉन SSL ब्राउजर्स है उसका यूज करके तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाते, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि क्यों हमें HTTPS और HTTP टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स हमें कंसिडर करने हैं, राइट? अगर हमें सिक्योरिटी के साथ फॉर्म सबमिट करना है, वेल एंड गुड, HTTPS प्रोटोकॉल का यूज कर लो, लेकिन वहां पे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉन SSL ब्राउजर्स होंगे, वो ऐसे रिक्वेस्ट को, ऐसे एक्सेस को वो रिफ्यूज कर देगा, राइट? बिकॉज वो SSL लेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच वी नीड टू कंसिडर, राइट? सो जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया है वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, राइट, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स कि जिसको सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन है, अगर उसे एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट कि अगर उसे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है तो सिंपल वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो नॉन SSL ब्राउजर भी उसे सपोर्ट करके सेंड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड नंबर है और वहां पे हम ऐसी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज फॉर्म सबमिट करते हैं यूजिंग HTTPS, तो ये नॉन SSL ब्राउजर उसे सबमिट करेगा ही नहीं, बिकॉज वो सपोर्ट ही नहीं करता है HTTPS प्रोटोकॉल को, right? So what we need to do, we have to use separate URL access. अगर वहां पे क्रेडिट कार्ड नंबर है तो हम वहां पे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, और सिंपल इंफॉर्मेशन है तो हम सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। वरना क्या होगा, ऐसे सबमिशंस के जिसके अंदर HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया है और हम नॉन SSL ब्राउजर्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर SSL एनेबल नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा, राइट? वो हमें सबमिट करने की परमिशन ही नहीं देगा, वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट्स वी नीड टू कंसीडर कि ओके, हमें क्या चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी है, राइट? सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। हमें अगर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने में थोड़ा परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है तो चलेगा, नहीं चलेगा, राइट? सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स विच वी नीड टू कंसिडर कि अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा URL कौन से प्रोटोकॉल का यूज करके हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे, right? So these are the many different things which you need to consider within SSL, right? So students, this is the topic, that is 3.3 SSL, that is secure socket layer, is completed over here. इन शॉर्ट, अब आपको पता चल गया है कि कैसी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी चाहिए और कैसी इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं तो वहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। That's why I have covered this topic 3.2, that is security on web, and topic 3.3, that is secure socket layer, prior to teaching you the topic that is 3.1, that is
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या फिर ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम, राइट। अगर नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले वो दोनों पॉइंट क्यों कवर किए, बिकॉज आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्यों प्रोवाइड करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे ध्यान में रखनी है, कैसे डेटा हो सकते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं www के अंदर, तो हम उसके ऊपर से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के बाद हम पेमेंट सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं, right? So students, these are the different things which you need to consider, right? So now